آپ دیکھ رہے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں اور میں ہوں ویس اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد تھانہ ڈچکوٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے ایک ڈاکٹر کو اغوا کر لیا۔ ورثہ کے مطابق اغوا کاروں کی جانب سے فون کال پر تاوان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اغوا کاروں کی جانب سے جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ پولیس نے بھائی کی مدعیت پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنی نمائندہ جویریہ نذیر سے۔ جویریہ، کیا مطالبات ہیں اغوا کاروں کے اور کیا پیش رفت ہوئی ہے تحقیقات میں؟ جی بالکل، تھانہ ڈچکوٹ کے علاقہ میں ڈاکٹر ظفر جو ہیں وہ اپنے گھر سے ایک سیر کے لیے نکلے اور واپس نہ آئے، جس کے بعد جو ہے وہ اہل خانہ کو مبینہ طور پر جو ہے وہ تاوان کے لیے کال جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی۔ اغوا کار جو ہے وہ بھاری تاوان جو ہے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس پر جو ہے وہ اہل خانہ نے تھانہ ڈچکوٹ پولیس کو درخواست دی تو پولیس نے اغوا کی دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمہ تو درج کر لیا، لیکن مغوی ڈاکٹر کو جو ہے وہ ابھی تک بازیاب نہ کروایا جا سکا۔ ورثہ جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کو بحفاظت جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے، جس پر جو ہے وہ وائڈ جو ہے وہ بھی سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو فیصل آباد میں لیڈی ڈاکٹر پر جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے تو دوسری جانب تھانہ ڈچکوٹ کے علاقہ میں جو ہے وہ ڈاکٹر کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر کی جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی جائے، یہ وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کی سیکیورٹی فراہم نہ کی گئی اور ڈاکٹر ظفر کو جو ہے وہ بحفاظت بازیاب نہ کروایا گیا تو وہ وائڈ جو ہے وہ احتجاج کرے گی، اسپتالوں کی ایمرجنسی وارڈ او پی ڈی کو بند کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر نے جو ہے وہ 24 آورز کا جو ہے وہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ ان کے ڈاکٹر کو بازیاب کروایا جائے۔ جی بہت شکریہ جویریہ آپ کا۔ ادھر ٹیکسلا میں مبینہ پولیس مقابلہ، موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکوؤں کی پولیس پر فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ دیگر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزم 12 سے زائد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مہنگائی کی نئی لہر، پشاور میں دال، چاول، گھی سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی، شہری پریشان ہیں۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے جمیل خان سے۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور ڈالر کی اونچی اڑان کے بعد اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں شدید حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس وقت پشاور کے ایک مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں پہ چنا 350 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ لوبیا 350، دال ماش 400 روپے فی کلو، دال چنا 260 پہ، چاول 340، گھی 460 پہ اور آٹا جو ہے 2550 پہ 20 کلو کا تیل مل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی جانیں گے کہ کتنی مشکل کا شکار ہے اور کیا کہیں گے۔ بتائیے گا جی، مہنگائی روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتی جا رہی ہے تو آپ لوگ کتنی مشکل میں؟ آج کل جی اتنی مشکلات ہے کہ عام غریب کام کرتا ہے تو وہ ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ روٹی بھی ہے وہ عام روٹی نہیں ہے۔ اور دوسرا بات ہے جب بازار میں لے کے جائے تو آلو کا چالو بھی نہیں لے سکتا ہے۔ آج کل اتنے مہنگائی کہ غریب عوام کا کمر ٹوٹ چکا ہے۔ جی بالکل، کالی چائے تقریباً 1400 روپے فی کلو پہ پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی جو استعمال کا اشیاء ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پشاور کے شہری مطالبہ کرتے ہیں کہ حکمران آپس میں لڑائیاں، آپس میں تلخیاں چھوڑ کے عوام کو ریلیف دے، اس پہ توجہ دے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی لائی جاتا ہے کہ ان کی مشکلات کم ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ادھر سرگودا میں رکشہ ڈرائیورز کا مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین نے سول اسپتال بم چوک کے قریب دھرنا دیا۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی جن کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ ایل پی جی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کام ٹھپ ہو گیا ہے۔ مظاہرین کا حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ۔ سردی کی شدت میں کمی کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ حیدرآباد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے باعث شہری پریشان ہیں۔ مزید بتائیں گے ناصر شیخ۔ جی سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر جو ہے وہ گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ شہری اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، خاص طور پہ گھر میں خواتین اور دکاندار جو ہے کھانا نہ بنانے کی وجہ سے، گیس نہ ہونے کی وجہ سے مستقل پریشان ہے۔ انڈسٹریل ایریا کی بھی صورتحال خراب ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ایک صاحب ہیں، جی بتائیے گا یہ جو گیس نہیں ہے اس سے کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد شہر پہ بالخصوص ہے تو ساری جگہ پر، لیکن حیدرآباد پر اتنی لوڈ شیڈنگ ہے کہ رات کو جاتی ہے کوئی 8-9 بجے، 10 بجے، صبح 5-6 بجے آتی ہے۔ پھر کوئی تو ایریا پاکستان سندھ کے ایسے ہیں، حیدرآباد کے خود بالخصوص ایسے ہیں قاصبات کے جہاں پر سارا دن نہیں ہوتا ہے۔ تو کم سے کم گورنمنٹ کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں
स्कूल ऑफिस में लोग जाते हैं, इंडस्ट्री के मजदूर हैं, लेबर हैं, सख्त परेशान हैं और इतनी कॉस्टली हो गया है दूसरी चीज़ों से, बिजली कितनी महंगी है। इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि इस लोड शेड को ख़त्म किया जाए ताकि तकलीफ हमारी दूर हो सके। इनका कहना है कि गैस ना होने की वजह से परेशानी है और यही सूरत हाल हर एक की शिकायत है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया या कोई वफाकी व सूबाई हुकूमत इस हवाले से कान धरने को तैयार नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद के मोहल्ला राना टाउन में सीवरेज का निज़ाम नाकारा हो गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। बच्चों को स्कूल और नमाजियों को मस्जिद जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरी म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ हट पड़े राना समीउल्लाह की रिपोर्ट। इलाहाबाद के मोहल्ला राना टाउन में सीवरेज का निजाम नाकारा, गलियां पानी से भर गईं। सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल, नमाजियों को मस्जिद जाने में दुश्वारी, जबकि बच्चे भी गंदे पानी की वजह से घरों में महसूर। ये जो मोहल्ला वाले हैं सभी मस्जिद में भी नहीं जा सकते, नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकते और जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। तकरीबन इसको 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। ये पानी जो सड़क में खड़ा हुआ है, यहाँ पर जो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इतना ज़्यादा ये पानी खड़ा हुआ है, पता ही नहीं चलता यहाँ पर गटर किस जगह पे। अब शहरी म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी के सीईओ के खिलाफ फट पड़े और शदीद एहतजाज किया। डीसी कसूर से नोटिस लेने का मुतालबा। म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद जो है ना, उसको बार बार हमने दरख्वास्तें भी दी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शहरियों की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी को कई बार दरख्वास्तें देने के बावजूद सीवरेज का पानी नहीं निकाला गया। शहरियों ने डीसी कसूर से नोटिस लेने और सीईओ म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। राना समीउल्लाह, न्यू न्यूज़, इलाहाबाद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की निगरानी में ट्रैप छापा कैंटोनमेंट बोर्ड SGD में बिल्डिंग चेकर के तौर पर तैनात मोहम्मद असगर बूटा गिरफ्तार। 50,000 रुपये रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस खबर के बारे में कि जुडिशल मैजिस्ट्रेट की निगरानी में ट्रैप छापा कैंटोनमेंट बोर्ड SGD में बिल्डिंग चेकर के तौर पर तैनात मोहम्मद असगर बूटा को गिरफ्तार किया गया। 50,000 रुपये रिश्वत की रकम भी उससे बरामद कर ली गई और आप इस शख्स को देख सकते हैं। शहर में सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना हो सका। गलियों बाजारों में उबलते गटरों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। शहरी अजियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए, लेकिन बासा हुकाम बात तक सुनने को तैयार नहीं। रिपोर्ट करेंगे वकास शिराज। फैसलाबाद वासा के दावे बेसूद साबित होने लगे। शहर में सीवरेज की नाकिस सूरत हाल पर शहरी परेशान, घरों से निकलना मुहाल हो गया। शहर के बेशतर इलाकों की गलियां, बाजार, अहम चौराहे सीवरेज के पानी में डूब गयी। बेशतर इलाकों में बदबूदार पानी की वजह से बच्चे और बूढ़े घरों में महसूर होकर रह गए। बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो गया। बहुत परेशान है इस वजह से। हम सीवर का बिल भी टाइम से देते हैं, मसले मसाइल हमारे फिर भी क्लियर नहीं हो रहे। सीवरेज की ये सूरत हाल है कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, निज़ाम इतना धर्म भरम है, ना हम नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, कपड़े वो खराब होते हैं, घर से निकलना दुश्वार है। गुलाम मोहम्मद आबाद के बेशतर इलाके, सरफराज कॉलोनी, सईदाबाद, सिद्धूपुरा समेत दीगर इलाकों में सीवरेज की सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई। वासा हुकाम बात भी सुनने को तैयार नहीं। फैसलाबाद के अंदर अगर आप देखें तो सीवरेज के इशूज़ डेफिनेटली हैं, क्योंकि यहाँ आबादी है और ऐसी आबादियाँ भी यहाँ पे बन चुकी हैं जिसको आप कहते हैं कि जहाँ पे जिन कॉलोनीज़ जो इतनी प्लान नहीं है, वहाँ पे सैनिटेशन का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है। हमें मल्टीपल लोग यहाँ पे कंप्लेंट देते हैं वासा के हवाले से, सैनिटेशन के हवाले से। शहरियों ने मुतालबा किया कि सीवरेज सिस्टम बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जाएं ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। शहर में सीवरेज का निज़ाम अबतर से अबतर होता चला जा रहा है, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए कोई भी इकदाम नज़र नहीं आ रहे, जिस पर शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकास शिराज, फैसलाबाद। उधर राजनपुर में ट्रैफिक पुलिस सरबराह न होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मनमानियां जारी हैं। दवाइयों की पर्ची को बतौर ट्रैफिक चालान पैड इस्तेमाल किया जाने लगा है। अता मोहम्मद की रिपोर्ट। राजनपुर जिले हेडक्वार्टर 5 माह से DSP हेडक्वार्टर से महरूम। दूसरी जानिब सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मनमानियां जारी। न्यू न्यूज़ को मौसूल होने वाली फुटेज के मुताबिक बेशतर इलाकों में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से प्राइवेट गाड़ियों पर दवाइयों की पर्ची पर चालानों का सिलसिला जारी है। ये किस चीज का 500 लिया? ये लाइसेंस का। ये 500 लिया। 500 का 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 500
दूसरी जानिब लाइसेंस ब्रांच 5 माह से गैर फाल होने से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचने के साथ साथ शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। उधर शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर DSP ट्रैफिक पुलिस तैनात कर दिया जाए ताकि शहरियों के मसाइल हल हो सके। अता मोहम्मद, नियो न्यूज़, राजनपुर। पित्ते में पत्थरी और फेफड़ों में इंफेक्शन के अमराज में मुब्तला साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को इलाज के लिए इस्लामाबाद के अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जमशेद दस्ती गुज़िश्ता कुछ रोज़ से मुल्तान के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जमशेद दस्ती ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि इलाज के लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ और इलाज के लिए उन्हें दूसरे शहर मुंतकिल किया जाए। आपको अपडेट कर रहे थे जमशेद दस्ती के बारे में। अब आपको बताएं कि फिरोजवाला में PP 138 के उम्मीदवार चौधरी एजाज हुसैन भट्टी की क़यादत में इमरान खान की हिदायत पर मोमिनपुरा से फैज़पुर तक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। रैली डेरा भटिया मोमिनपुरा से शुरू होकर फैज़पुर पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में मकामी अहदेदारों समेत कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चौधरी एजाज हुसैन भट्टी ने कहा कि अवाम आए रोज़ इस हुकूमत की नाअहली की बदौलत महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएं। पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश धमाके में 4 सद्दा से ताल्लुक़ रखने वाले DSP हेडक्वार्टर्स रब नवाज खान समेत 18 पुलिस नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। पुलिस लाइन धमाके ने पूरे ज़िला 4 सद्दा में हर चेहरे को अफसरदा और हर दिल को उदास कर दिया है। नसरुल्लाह खटक की रिपोर्ट। तहसील 4 सद्दा, तंगी और शब कदर में शोधा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अश्कबार आंखों के सामने सपर्दे खाक किया गया। शोधा की फातिहा खानी के लिए सियासी, मजहबी और सिविल सोसाइटी की आमद का सिलसिला जारी है। घरों से खुशी खुशी निकलने वाले पुलिस एहलकार मनो मट्टी तले सो गए। तहसील तंगी अमीराबाद के 2 जिगरी दोस्त भी शहीद हुए। इफ्तिखार और इब्ने अमीन स्कूल के वक्त से करीबी दोस्त थे और महकमा पुलिस में भी एक ही दिन भर्ती हुए। क्लास फेलो भी थे, कॉलेज में भी इकट्ठे थे और ये पुलिस सर्विस में भी उसकी इकट्ठी अपॉइंटमेंट हो गई थी, ड्यूटी कर रहा था और पेशावर ब्लास्ट में भी इकट्ठे शहीद हो गए। अमीन के सोगवारों में बेवा और 2 साला बेटी, जबकि इफ्तिखार के सोगवारों में बेवा और 2 बेटियां शामिल हैं। बारिश और सैलाब को गुजरे 5 माह से ज़्यादा का अरसा बीत गया, मगर बरसात की तबाहकारियाँ आज भी जारी हैं। तहसील मोरो के मुख्तलिफ इलाकों में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से मोबाइल हेल्थ यूनिट का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। मोरो से रिपोर्ट करेंगे अमीन चौहान। सिंध भर में बरसात और सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज ने जन्म लिया, जिसमें स्किन डिजीज, डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड और पेट की बीमारियां शामिल हैं, जिसकी वजह से लोग इंतहाई परेशान कुन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अभी जो मैं बीमारियां देख रहा हूँ वो गैस्ट्रो की बहुत ज़्यादा हैं, फीवर बहुत, फ्लू चल रहा है और इसके अलावा जहाँ भी देहात में हम जाते हैं जहाँ बारिशें वगैरह का नुकसान हुआ है वहाँ सिर्फ स्किन डिजीजेस बहुत हुए। बरसात और सैलाब ने जहाँ घर और फसलें तबाह की, वहीं अवाम की सेहत को भी शदीद मुतासिर किया। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से तहसील मोरो में 100 से ज़ायद देहातों में मोबाइल यूनिट कायम किए गए हैं, जहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हमारा हदफ है कि 150 से 200 के दरमियान पेशेंट देखेंगे और इस गाड़ी की क्वालिटी बताएंगे। इस गाड़ी के अंदर ही सारा इलाज वगैरह होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर। मोबाइल यूनिट में हर रोज तकरीबन 100 से 200 मरीजों का चेकअप किया जाता है और उनको बर वक्त मेडिकल टेस्ट और अद्वियात फराहम की जाती है। नहीं, इधर के कोई नई टीम आई थी, पहली मरतबा ये जो है अल खिदमत आई है, बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस टीम का जिस दोस्तों ने तावन किया। इधर दूसरी जानिब बरसात और सैलाब मुतासरीन ने भी अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इन कठिन रास्तों से चलकर इन बच्चों का इलाज काबिल सताइश है। हुकूमत सिंध को भी चाहिए ऐसा निज़ाम कायम करे। मोहम्मद अमीन चौहान, लियो न्यूज़, मोरो। राजनपुर में समाजी तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के साथ साथ मुतासरा किसानों की बहाली के लिए भी कोशिशों का सिलसिला जारी है। 300 से ज़ायद किसानों को आटा, राशन के साथ साथ खाद भी तकसीम की गई। राजनपुर में समाजी तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासरा किसानों की बहाली और ज़मीनों की आबादकारी के लिए खाद तकसीम की गई। इस मौके पर समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना था कि अब तक 2000 से ज़ायद घरों में राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया
फराहम की गई हैं। मेडिकल किट्स, बच्चों की अशिया, बकरियां, मुर्गियां और खाद भी मुतासरीन में तकसीम कर चुके हैं। मुतासरा किसानों का कहना था कि खाद मिलने से उनको ज़मीनें दोबारा आबाद करने में मदद मिलेगी, जिनसे उनका आने वाला वक्त बेहतर होगा। मुजफ्फरगढ़ में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से यतीम और मुस्तहिक बच्चे बच्चियों के लिए मुफ्त शॉपिंग बाजार का एहतमाम किया गया। बच्चे बच्चियों में गर्म कपड़े और जूते तकसीम किए गए। मज़ीद जानेंगे फरहान हाशमी से। जी बिल्कुल, आज जमात इस्लामी के ज़िले दफ्तर में अलखिदमत की जानिब से जो मुस्तहिक और यतीम बच्चों के दरमियान जो है फ्री शॉपिंग का जो बाज़ार का इनेकाद किया गया है, जिसमें आगे आज बच्चों ने शॉपिंग की है और इसे जो इसके अंदर सामान तकसीम किया गया है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार पर मुश्तमिल जो है पैकेट का जो है उसकी जो शॉपिंग इन्हें करवाई गई है, जिसमें गर्म कपड़े, शॉल, गर्म जूते और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान है वो मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ज़िले रहनुमा जमात इस्लामी राना अफजल आई, इनसे जानते हैं कि इनका हवाले से क्या कहना है। जी, जमात इस्लामी अलखिदमत फ़ाउंडेशन के रज़ाकार दुखी इंसान की खिदमत के लिए हमेशा पेश रहते हैं। आज ज़िला मुजफ्फरगढ़ के तकरीबन 250 जो यतीम बच्चे और बच्चियां और ख़ानदान हैं, उनके लिए अलखिदमत फ़ाउंडेशन ने फ्री शॉपिंग बाज़ार सजाया मुख्तलिफ डोनर्स की मदद से। तो उसके अंदर गर्म शाल्स, कपड़े, जूते इन तमाम बच्चों ने अपनी मर्ज़ी और पसंद के ख़रीद किए। तो ये बच्चे आज इंतहाई खुश थे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारी इनसे बात हुई तो जमात इस्लामी के ज़रिए रहनुमा का यही कहना है कि तकरीबन 250 ख़ानदानों की जो है इधर वो कफ़ालत कर रहे हैं। और आज जब हमारी बात बच्चों से हुई तो बच्चे जो है शॉपिंग से इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। तो मज़ीद बच्चों का ये कहना था कि भी इस तरह के जो है जो इवेंट्स हैं वो इधर मुनक्किद होने चाहिए ताकि जो है मुस्तहिक और जो है यतीम बच्चे बच्चियों की जो है वो कफ़ालत हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। जाफराबाद का नौजवान मुसव्विर कासिम बुगटी हिम्मत और हौसले का मीनार है, जिसे न सैलाब ने कमज़ोर किया, ना ही घर और माल मवेशी और कीमती सामान के नुकसान ने उसे बददिल किया। डेरा अलायार से रिपोर्ट करेंगे इनायतुल्लाहर। जाफराबाद का नौजवान मुसव्विर अज़्मो हिम्मत की मिसाल बन गया। 6 माह पहले बारिशों और सैलाब से मोहम्मद कासिम बुगटी का न सिर्फ घर और बल्कि स्टूडियो भी सैलाब की नजर हो गया। तमाम कीमती पेंटिंग्स और माल मवेशी भी सैलाबी रेला बहा ले गया। लेकिन कासिम बुगटी ने हिम्मत ना हारी, गिरे हुए घर पर खैमा लगाकर अपना सफर जारी रखा। एक खैमे में रिहाइश तो दूसरे में अपना स्टूडियो बनाया। कासिम घंटों अपने खैमे के बाहर बैठा काम करता है, जबकि बूढ़ा वालिद बेटे को देखता रहता है। सैलाब ने यहाँ पे माल मवेशी और यहाँ की खड़ी फसलों के साथ साथ और वो मतलब मेरे कीमती असासी पेंटिंग्स थे, जो मेरा सब कुछ था, मेरा घर, स्टूडियो, सब कुछ तबाह हो गया। 6 माह गुजरने के बावजूद इस नौजवान मुसव्विर की मदद को ना ही हुकूमत बलूचिस्तान आई, ना ही कोई फलाही तंजीम। कासिम बुगटी को खैमा भी उसके आर्टिस्ट मुसव्विर दोस्तों ने फराहम किया। कराची के इलाका कयूमाबाद चौरंगी के करीब औबाश नौजवानों की खातून से सरेआम बदतमीजी। मुतासरा खातून के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गाड़ी का ताक़ुब किया, हिरासा किया और आवाज़ें कसी। खातून ने मोटरसाइकिल को कार से टक्कर मारकर रोकी तो झगड़ा बन गया। खातून को हिरासा करने वाले दोनों अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। जी रजब। रजब अली से भी हम राब्ता कायम करेंगे, आपको अपडेट करें कि कराची के इलाके कयूमाबाद चौरंगी के करीब औबाश नौजवान की खातून से सरेआम बदतमीजी।